Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the life cycle of angiospermic plants. So let's move to the classboard. So dear students, class angiospermae, and now the life cycle of angiospermic plants. Very much important long question. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी बात की कि एंजियोस्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन के एतबार से अगर हम बात करें तो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो उनके अंदर फ्लावर्स हैं, ठीक है। और इसमें जो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी जो कि गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड है उसके साथ अल्टरनेट करेगी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वी हैव टू गेट द थॉरो नॉलेज ऑफ द फ्लावर, ठीक है, उसके जो पार्ट्स होते हैं और ख़ास तौर पर वो पार्ट्स जो कि इसेंशियल पार्ट्स कहलाते हैं, यानी कि द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो चलते हैं इसकी तरफ, लाइफ साइकिल की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फ्लावर So the pedicel, thalamus or torus, and the outermost wall. Now the general description. So this is pedicel and thalamus or torus. Now the whorls. So this is sepal and the petals. Together they form the non-essential parts of flower, ठीक है। और इनकी हम जनरल डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। सेपल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इसको एक तो प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। दूसरा, चूँकि ग्रीन इन कलर होते हैं तो दे आल्सो डू फोटोसिंथेसिस। पेटल्स, ये पेटल्स जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, ब्राइट शोख रंग की, और ये इनके शोख कलर जो ब्राइट कलर्स हैं, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और वो फिर पोलिनेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है।
and here is the stamen and the pistil. So on that very side I have did the classification. जो first हमने classification की थी reproductive and non-reproductive parts के हवाले से. So these are the essential parts of flower. Clear? अब whorls की तरफ आते हैं. Now on that very side I am going to discuss the whorls. So this one is the first whorl. The outermost or the first whorl called calyx. इसको calyx कहते हैं, ठीक है? और calyx basically all the sepals collectively they are called as sepals. Means all sepals collectively they called calyx, the outermost, the first whorl. Now this one, the second whorl, and its name is corolla. Clear? And all petals they collectively they are called as corolla. Now the third whorl, this one is the third whorl. It is called androecium. Androecium और जो collectively जितने भी stamens हैं, all stamens they are collectively called as androecium. The third whorl, and this one, the fourth or innermost whorl, it is called gynoecium, and it is for all pistils or carpels. They are collectively called as gynoecium. So dear students, now the androecium, तो इन दोनों के हवाले से डिटेल से बात हो चुकी है. अब मैं यहाँ पर androecium की डिटेल आपसे शेयर करने लगा हूँ. The male reproductive part. It is the male reproductive part of flower. Clear? The male reproductive part of flower, that is androecium. तो androecium कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर और थर्ड whorl. तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? So it looks like this. Clear? This is filament and this is anther. Clear? एंथर को अगर आप ऊपर से चॉप करें तो क्रॉस सेक्शन में किस तरह से ये दिखेगा? तो ये ऊपर ऐसे
ये एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंशियम है, इस तरह से, ठीक है। इसको ऊपर से चॉप करके इतने हिस्से को और दिखाया, ये सामने से दो और उसके साइड पे भी इस तरह से, पीछे वाली साइड पे इस तरह से, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको 4 सैक नजर आएंगे, 4। सो दिस इज माइक्रोस्पोरेंशियम एक्चुअली, एंथर इट कंटेन्स माइक्रोस्पोरेंशियम। और माइक्रोस्पोरेंशियम सैक को कहते हैं, इसके अंदर मौजूद हैं माइक्रोस्पोर्स। इट हैज गॉट, मैं यहाँ पर सिर्फ एक एक माइक्रोस्पोर को शो करूँ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर a lot of microspores are there. So this is microspore. This is microsporangium containing the microspore. अब इसका जो माइक्रोस्पोर है, it is also known as pollen grain. Clear? और जब इस एक माइक्रोस्पोर को बाहर निकाल के देखें, so this is microspore. तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, it will undergo cell division, mitosis and produce 2 nuclei. इससे 2 न्यूक्लियस पैदा होंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। One is called generative nucleus and the other is called tube nucleus. Clear? और ये सारे क्या कहलाएंगे? This is male gametophyte. This is called as male gametophyte. तो ये माइक्रोस्पोर, the microspore containing the male gametophyte is called pollen. Actually इसको हम कहते हैं pollen grain. और बहुत सारे होते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं pollens, simply pollens कहते हैं। अब ये pollen grain जब उसके ऊपर गिरेगा जाकर, जब लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, तो फिर आफ्टर पॉलिनेशन जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, लेकिन याद रखिएगा आफ्टर पॉलिनेशन द जनरेटिव न्यूक्लियस विल फॉर्म 2 स्पर्म्स और ये ट्यूब न्यूक्लियस वैसे रहेगा, लेकिन अपॉन फर्टिलाइजेशन मतलब अपॉन पॉलिनेशन, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा। Okay, so these are 2 sperms. The sperm means the male gamete and this is tube nucleus. और अब देखते हैं कि जो 4th whorl है उसमें क्या चेंजेस आने वाली हैं या वो किस तरह से होगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन यहां से स्टार्ट करूंगा मैं। Gynoecium, clear? That is the female reproductive part. तो इसको हम डिटेल से देखने लगे हैं। तो पहले इसके कुछ बेसिक पार्ट्स के हवाले से, ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी और ओवरी के अंदर है ओव्यूल। और ओव्यूल हम डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, इंटेगुमेंटेड, इनडेhiscent
megasporangium is called ovule containing the male gametophyte। और अब इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल के देखेंगे। सो दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम डिटेल से अब देखने वाले हैं। So over here, these are the integuments, embryo sac, जिसको हमने कहा था कि ये फीमेल गमीटोफाइट है, और उसके अंदर मौजूद this is integument and megasporangium। उसके अंदर मौजूद this one is the embryo sac, और इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है, ये जो सा एरिया, दिस वन, वो जो कि कवर कर रहा है इसको एम्ब्रियो सैक को, दिस इज अ लार्ज पार्ट, इसे न्यूसेलस कहते हैं। और इसके अंदर होते हैं 7 सेल्स। इट हैज गॉट 7 सेल्स। तो इनकी डिटेल भी हम अभी देखेंगे। तो ये बेसिक अभी फिलहाल मैंने इसकी की डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज इंटेगुमेंट, and this is megasporangium, and this region is called nucellus। ठीक है, न्यूसेलस कहते हैं जो मेजर हिस्सा मेगास्पोरेंजियम का, जो कि एम्ब्रियो सैक को कवर कर रहा है, और ये अंदर मौजूद है एम्ब्रियो सैक, और जिसको हमने कहा फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैं इसमें से सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट को बाहर निकालूंगा। अब इसमें से सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि एम्ब्रियो सैक। So it has got 7 cells only, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इसके गिर्द वो इंटेगुमेंट्स मौजूद हैं। क्लियर? तो ये अब आ जाए, ये ऊपर वाले जो 3 सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। तो यहां पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, इट अंडरगोस मियोसिस, और उसमें से बनेंगे 4 मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। उनमें से 3 अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ड्रॉप हो जाएंगे, एबॉर्ट हो जाएंगे, एक बच्चे का। अब जो एक है वो जर्मिनेट करेगा, और वो मतलब कि बनाएगा द गैमेटोफाइट। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर फिर वो जब डिविजन्स होंगी तो उससे 7 बड़े सेल्स बनेंगे, एंटीपोडल सेल्स, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुई थी पहले, सो दे आर हैप्लॉइड, और दरमियान में ये बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसको फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियस देख सकते हैं। ये डिप्लॉयड होता है, शुरू में ये एक एक होते हैं, बाद में फ्यूज कर जाते हैं तो ये 2 बन जाते हैं, यानी कि डिप्लॉयड हो जाता है। ये साइड्स के ऊपर जो है दे आर सिनर्जिड्स, हैप्लॉइड, ये भी सिनर्जिड और ये भी सिनर्जिड, और दरमियान वाला जो है दैट इज एग सेल। क्लियर? सो दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ovule. So it is present within the
गायनोशियम। इससे मज़ीद आगे मूव करने से पहले आपको इनकी वो मैं रोल बताता चलूँ। एंटीपोडल सेल्स, दे आर न्यूट्रिटिव इन देयर फंक्शन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसका बाद में रोल बताऊंगा जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन इससे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फिर एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। सिनर्जिड्स, दे गाइड पोलन ट्यूब, क्लियर। और एक बाकी एग सेल, तो ये इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होनी है, क्लियर। तो हियर इज द पोलन ग्रेन, दो न्यूक्लियस, तो जैसे ये लैंड करेगा पॉलिनेशन होगी, तो यहाँ पर माइटोसिस, तो जनरेटिव न्यूक्लियस से क्या बनेगा, दो स्पर्म, और ट्यूब न्यूक्लियस क्या स्टार्ट करवा देगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से स्टाइल से होती हुई यहाँ से माइक्रोपाइल के पास पहुंचेगी ओवर हेयर, और यहाँ पर पहुंचने पर वो दो जो स्पर्म थे उनको रिलीज कर देगी, ठीक है। दो स्पर्म्स को, इन दो स्पर्म्स को रिलीज करेगी। एक स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज होगा, स्पर्म चूंकि हैप्लॉइड था तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड, अब ये होगा। और एक स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, इट विल फॉर्म जाइगोट, चूंकि डिप्लॉइड। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, क्लियर। और ये ओव्यूल, ये सारा ओव्यूल था, तो ये ओव्यूल के बाद इंटेगुमेंट्स होती हैं। आउटर लेयर से बनेगा टेस्टा, और जो इसकी इनर लेयर है इंटेगुमेंट की, उससे बनेगा टेगमेन, ठीक है। बोथ दीज आर द लेयर्स ऑफ सीड कोट, ये दोनों क्या है, सीड कोट। तो बाहर वाली लेयर आउटर इज टेस्टा, और इनर लेयर जो सीड के ऊपर है दैट इज टेगमेन। टेस्टा जो है ये बाहर से मैकेनिकल इंजरी और इस तरह की चीज़ों से बचाएगा। टेगमेन जो है ये बेसिकली अंदर से जो कवर कर रहा है उसको उसको सीड को, ठीक है। और ये अंदर अब सीड बन गया, सीड के अंदर क्या मौजूद है, एक तो एम्ब्रियो, दूसरा यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इसने बनवा दिया द सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो इससे क्या बन गया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, इट इज ट्रिप्लॉइड, और इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू ये स्टोर करेगा न्यूट्रिएंट्स को जब तक कि एम्ब्रियो सीड के अंदर है उसको जिंदा रखने के लिए, ठीक। तो एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हो रही है, एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हुई, और एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हुई ओवर हेयर। क्योंकि ये दो फर्टिलाइजेशंस हो रही हैं, सो दैट इज व्हाई एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। ये याद रखनी है, डबल फर्टिलाइजेशन। वन स्पर्म it will fertilize with egg cell and form zygote, diploid, haploid and haploid, और दूसरा सेकंड स्पर्म it will fertilize with secondary nucleus which is diploid, and it will form endosperm nucleus which is now triploid, क्योंकि 2n plus n is equal to 3n, क्लियर। याद रखना है इस बात को, ये डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ किसके अंदर होती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization integuments
उससे क्या बनेगा, सीड कोट। और उसकी हमने डिटेल्स पढ़ गई कि बाहर वाले जो लेयर होगी, जो इंटेगुमेंट है, उससे बनेगा टेस्टा, और अंदर वाले जो लेयर है उससे, यानी कि उसकी इंटेगुमेंट की, उससे बनेगा टेगमेन। तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, सीड कोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, ऊपर सीड कोट, और सीड के अंदर क्या क्या है, दो फर्टिलाइजेशन हुई। एक यहां पर मौजूद है जाइगोट, सीड के अंदर क्या है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, क्लियर, एम्ब्रियो। और दूसरा इसमें एंडोस्पर्म टिश्यू। और तीसरी चीज ओवरी, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म्स फ्रूट। तो फ्रूट सबसे बाहर फ्रूट, उसके अंदर सीड, और सीड के बाहर क्या है, सीड कोट, क्लियर। तो ये सारी चेंजेस कहाँ पर आ रही हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो जो इसमें इस तरह से इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। और जब तक ये प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल जाती सीड जर्मिनेशन की, मतलब जैसे वाटर, टेम्परेचर, खास तौर पर सबसे पहले वाटर, तो तब तक ये सीड जो है ये एम्ब्रियो को इसके अंदर जिंदा रखेगा विद द हेल्प ऑफ द एंडोस्पर्म टिश्यू। और अपॉन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द सीड जर्मिनेट्स, और नेक्स्ट प्लांट जो है, नेक्स्ट स्पोरोफाइट उससे कंटिन्यू होगी, क्लियर। तो ये इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल को अपने जहन में रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।